Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. This is your computer teacher Aisha Anwar. I hope all of you have watched the videos that are being shared with you carefully and you have covered them. The few students approached me with some queries. I have answered their queries. If some queries are still there, you can ask me anytime. We have completed chapter number 1 and we have also discussed its exercise only main points. Today we are going to revise the chapter number 1 along with the exercise. So in this chapter we have studied about operating system. Then we also discussed about commonly used operating system. Then we studied types of operating system. Then we differentiated between the single user and multi-user operating system. After this topic, we discussed the details of operating system functions and then process management. Process management is a type of a operating system function. We have discussed it with details like complete its process state cycle. So let's go through these again one by one. We studied about types of operating system. There are about 9 types of operating system in which we discussed that batch processing operating system, multi-programming operating system, multitasking operating system, time sharing, real time, multiprocessor, parallel processing, distributed and embedded operating system. अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी हद तक होता है, जो कि नॉर्मली इस टाइप का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसिंग. सो इट मीन्स इसमें से कुछ डिफ़ाइन करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफ़ाइन बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिफरेंशिएट का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है. सो इट मीन्स कि आपने इस टॉपिक को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है. एक तो आपको उनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए एंड सेकेंडली यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग 2 or 3 टाइप्स ऑफ operating systems. After types of operating system, we discussed its classification. We classify operating systems like single user and multi-user operating system. We classify these operating system upon the number of users. Those operating systems which are used by only one user or a single user at a time are known as single user operating system. For example, DOS and Windows operating system. And those operating systems which are used by many users at a time are known as multi-user operating system. For example, Unix, Linux, Windows 2000, Mac OS and the Windows NT. Multi-user operating systems are those operating systems which are used in a networking environment. They provide us the facility and all the operations which are required in a networking environment. After this, we studied about operating system functions. Let's revise them again. These are process management, memory management, file management, input output device management, secondary story management, network management, protection system and command interpreter. So this memory management first of all we will discuss this process management. In process management, as its name indicates, that it will be dealing with all the processes that are creating in any computer, in any operating system, how these operating system manage the processes. An operating system tries to manage the processes in such a way that we can utilize the CPU time at its maximum and we can achieve the higher efficiency of the CPU system. So it is the duty of the operating system to manage the processes in such a way so that we can achieve the maximum utilization of the CPU. Second one is memory management. In memory management, operating system manages the memory
which the processes takes. अब इसमें होता क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है कौन से प्रोसेसेस को मेमोरी से आउट करना है और कौन से प्रोसेसेस को मेमोरी में वापस इन करना है. इस तरह से वी यूज़ टर्मिनोलॉजी फॉर इट लाइक स्वैप इन एंड स्वैप आउट. अगर मेमोरी में लेके आना है तो स्वैप इन, मेमोरी से लेके जाना है तो स्वैप आउट. So it is also the responsibility of operating system to manage the memory. Then third one is file management. As its name tell कि इसमें हमें वो तमाम facilities मिलेंगी through which we manage our files. Like for example, we can create files, we can save files, we can rename files, we can delete files, we can relocate files and so on. आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई अपना डाटा सेव करते हैं इन फॉर्म ऑफ सम फाइल्स और पिक्चर्स, तो हम उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं. लाइक सी ड्राइव से मैं डी में ले जाऊँ, डी से ई में ले जाऊँ, मैं फ़ोल्डर का नाम कंप्यूटर साइंस 1 से मैं कंप्यूटर साइंस 2 कर दूँ. तो इस तरह के तमाम ऑपरेशंस जो मुझे अलाउ करते हैं वो फाइल मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इस फंक्शन की मदद से मैं अपने फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज कर सकती हूँ. द नेक्स्ट वन इज़ IO मैनेजमेंट. IO management means input output device management. It means all the devices that are connected to the computer, either input or output, are managed by the operating system, which means कि किसी प्रोसेस को अगर लेट्स से कोई P1 है हमारे पास, इट रिक्वायर्स सम इनपुट डिवाइस और इट रिक्वायर्स सम आउटपुट डिवाइस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करेगा कि P1 जो है वो इस टाइम पे इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहा है. अब इनपुट डिवाइस अगर वो यूज़ कर चुका है तो अब वो आउटपुट डिवाइस को यूज़ करेगा. और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के तमाम ऑपरेशंस इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. अब अगर हम बात करें कि मेमोरी मैनेजमेंट और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमने मोस्टली जो बात की थी दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ रैम. बट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में जो इसकी हम बात करेंगे दैट इज़ हार्ड डिस्क और USB और CDs. All of us know that computer memory has two types. One is primary memory and the other is secondary memory. So primary memory is the temporary memory, that is RAM or ROM, and secondary memory is the permanent memory. So if we want to save a file or any data into some secondary storage memory, it is the duty of operating system to manage that. कि अगर आपकी उसमें USB है या हार्ड डिस्क है या CD है, इसमें स्पेस नहीं है, तो एरर मैसेज शो करना, या उसमें से फ़ाइल्स आप कुछ डिलीट करते हैं या रीअरेंज करते हैं, या कुछ फ़ाइल्स को डिलीट करके आप अपनी मेमोरी में कैपेसिटी बनाते हैं किसी नई फ़ाइल को सेव करने के लिए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेटवर्क मैनेजमेंट. ये तो बहुत ही क्लियर है नाम से. नेटवर्क मैनेजमेंट ऐसा फीचर होगा जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होगा, यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होगा. नेटवर्क मैनेजमेंट के थ्रू वी मैनेज द नेटवर्क एंड इट्स ऑपरेशंस. वी असाइन प्रिविलेजेस एंड सम राइट्स टू द यूज़र्स के इस यूज़र को कितनी एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर को कितनी एक्सेस है, या कोई गेस्ट अकाउंट अगर है तो उसको कितनी एक्सेस हमने देनी है और कौन से राइट्स देने हैं, कौन से प्रिविलेजेस देने हैं. ऑल ऑफ दीज टास्क आर मैनेज्ड बाय नेटवर्क मैनेजमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन सिस्टम. इसका भी आपको नाम से बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ यूज्ड टू क्रिएट टू प्रोटेक्ट द फाइल्स और द डेटा इनटू द कंप्यूटर. जितना भी आपके पास डाटा है, जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं, उसको जो सेव करना है, उन पर पासवर्ड्स लगाना है, एक्सेस देनी है या नहीं देनी है, या लिमिटेड एक्सेस देनी है, ऑल ऑफ दीज सेटिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोटेक्शन सिस्टम. And the last one is command interpreter. Command interpreter is used to enter the commands, like we have studied about DOS. DOS is disk operating system.
which is a single user operating system and it is command based operating system. It means कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कमांड्स के थ्रू यूज़ करते हैं. मैंने कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो मैं डबल क्लिक करके नहीं करूँगी, वो मैं कोई ना कोई कमांड यूज़ करके करूँगी. फ़ाइल क्लोज़ करनी है उसके लिए भी कमांड होगी. इवन मैंने अगर कंप्यूटर को शट डाउन भी करना है तो उसके लिए भी कमांड होगी. कोई आइकन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो जो कमांड इंटरफेसेस होते हैं उनकी जो कमांड्स एंटर की जाती हैं वो कमांड इंटरप्रेटर पे की जाती हैं. और ये कमांड इंटरप्रेटर जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें हमारे पास cmd.exe फ़ाइल अवेलेबल होती है. ये cmd.exe फ़ाइल को हम ओपन करके कमांड्स को हम इस पे एंटर कर सकते हैं. So these were the functions of operating system that we have studied in this chapter. The next portion of this chapter is about process management. अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन. बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आपके कोर्स में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया है. As we have studied that what is a process? The program which is under execution at a particular time is known as process. For example, मैं कई तरह के प्रोग्राम इस टाइम पे कंप्यूटर में यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, मैंने बहुत सारी फाइल्स ओपन की हैं, लेकिन इस टाइम पे करंटली कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, दैट प्रोग्राम इज़ नोन एज द प्रोसेस. ऐसा प्रोग्राम जो अभी करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जो प्रोग्राम अभी इस टाइम पे अंडर एग्जीक्यूशन है, दैट प्रोग्राम इज़ नोन एज द प्रोसेस. सो अ प्रोसेस हैज़ 5 स्टेट्स. जब भी प्रोसेस बनता है तो वो इन 5 स्टेट्स में से गुज़रता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड और वेटिंग, एंड इन द एंड टर्मिनेटेड. Whenever a process is created, whenever it is just created, the process is in the new state. जैसे ही process को create किया जाता है उस time पे process new state में होता है. Whenever this process is now admitted to operating system, this process now comes to the ready state. ठीक है, अभी प्रोसेस को हमने रन करने के लिए उसको हमने रेडी कर लिया है. अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिस्पैचर या स्केजुलर होता है. स्केजुलर या डिस्पैचर का काम क्या होता है कि जितने भी टास्क हमारे पास रेडी क्यू में आ रहे होते हैं वो डिस्पैचर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन होते हैं और वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में चले जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टास्क हमारे पास क्रिएट हुआ तो वो न्यू स्टेट में था. न्यू के बाद वो रेडी स्टेट में चला गया. अभी प्रोसेस रेडी स्टेट में आया है और उसने देखा है कि प्रोसेसर इस टाइम पे अवेलेबल है, तो जो हमारे पास प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा. और रनिंग स्टेट में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम से एग्ज़िट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. एक सिनेरियो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट में आया. रेडी स्टेट में आने के बाद जिस टाइम पे वो रनिंग स्टेट में गया, यहाँ पे उस प्रोसेसर को मैं कहती हूँ कि हमारे प्रोसेसर को कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड है. लेट से प्रिंटर ही उसको रिक्वायर्ड है और प्रिंटर इस टाइम पे फ्री नहीं है, तो रनिंग स्टेट से क्या होगा, अभी वो प्रोसेस सीपीयू को ऑक्यूपाई नहीं करेगा. प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से हमारे पास वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा. और ब्लॉक स्टेट में या वेटिंग स्टेट में वो वेट करने के बाद और अपना काम प्रिंटर के थ्रू करने के बाद वापस रेडी स्टेट में जाएगा. रेडी से अगेन वो प्रोसेस फिर रनिंग में जाएगा. और अब अगर इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो नाउ इट विल गो टू द टर्मिनेशन. इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे एक चीज़ जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज़ इंटरप्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कहते हैं कि एक टास्क अभी है, एक प्रोसेस है जो कि अभी रनिंग स्टेट में है. ठीक है, रनिंग स्टेट में अभी एक प्रोसेस है, लेकिन एक और टास्क आया जो थोड़ा हाई प्रायोरिटी टास्क है, तो वो डायरेक्ट रेडी स्टेट में आएगा. रेडी से वो रनिंग में जाना चाहेगा क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी टास्क है, उस काम को पहले होना है.
तो हमारे पास जो ऑलरेडी इसमें टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है रनिंग स्टेट में, वो रनिंग से इंटरप्ट होके रेडी स्टेट में आ जाएगा। इट मीन्स कि जो प्रोसेस वन हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा था इस टाइम पे, वो रनिंग स्टेट को छोड़ देगा, रनिंग स्टेट से वो इंटरप्ट होके रेडी स्टेट में आएगा, और P2 जो मेरे पास हाई प्रायोरिटी टास्क आया था वो रेडी स्टेट से डिस्पैच होके रनिंग स्टेट में चला जाएगा। वो चूँकि हाई प्रायोरिटी था, इट मीन्स कि उसको पहले एग्जीक्यूट होना है, इस वजह से उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, पहले की, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद P2 जो है जब टर्मिनेट हो जाएगा, फिर P1 जो है, अब P1 रेडी स्टेट से दोबारा रनिंग स्टेट में आके अपनी रिमेनिंग प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा। आई होप कि अब आपको ये प्रोसेस स्टेज थोड़ी सी बेहतर क्लियर हो गई होंगी। जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था प्रोसेसेस से रिलेटेड, वो था थ्रेड्स। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इफ़ वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू इट्स पार्ट्स, तो दीज पार्ट्स आर नोन एज थ्रेड्स, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। सो इट मीन्स थ्रेड जो है वो प्रोसेस का ही पार्ट है, और प्रोसेस को हम दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर उस प्रोसेस को हम फर्दर डिवाइड करें उसके बेसिक पार्ट्स में, तो उसको हम थ्रेड्स कहेंगे। इट मीन्स अ प्रोसेस हैज़ मैनी थ्रेड्स एंड अ थ्रेड बिलोंग्स टू अ प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन अ प्रोसेस एंड थ्रेड। वी डिस्कस दैट a program which is under execution is known as process, but a thread is a subset of a process. Subset means a part of a process. So in this way processes are independent but threads are dependent. So if the threads are dependent, so it means they share the memory spaces, and process runs in separate memory spaces because they are independent of any other process. After this topic we studied about the term multi-threading. इसके भी आपको नाम से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। multi means many and threading is the word from thread. It means multi-threading is a process of executing multiple threads simultaneously. Simultaneously means at the same time. This procedure is known as multi-threading. With this topic we have covered our chapter. So now let's come to the exercise. As I told you to solve the MCQs by yourself, if you have solved, please share your answers with me in the computer group. So here are the short question answers. Question number 1, what is the purpose of operating system in a computer? The purpose of operating system in a computer is to manage the computer resources, whatever, like any computer resources mean any input output device, its memory, its CPU, its all other resources. Without operating systems, our computer system is just our dummy hardware. We can't do anything of that hardware. The next question is, what is GUI? As we have discussed earlier, GUI is a graphical user interface which allows the user to interact through menus, icons, pictures using any pointing device like mouse or trackball. GUI are easy to use and easy to handle. Okay, the question number 3 is about the advantages of Unix operating system. Unix provides greater processing power and better security than Windows operating system. Computer running Unix operating system rarely have malware attacks. Malware means virus attacks. यूनिक्स जो है इसमें हार्डली ऐसा होता है कि कोई ना कोई वायरस अटैक करे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमारे पास वायरसेस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वायरसेस जो हैं वो रेयरली ऐसा होता है कि कोई वायरस कंप्यूटर को अटैक करे. And the third one,
Unix is available for wide range of computer systems from microcomputer to mainframes. इट मीन्स इट हैज़ लॉन्ग रेंज के यूनिक्स में इतनी वैरायटी है कि वो बहुत सारी तरह के कंप्यूटर पे यूज़ हो सके. जैसे फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मोस्टली यूज़ ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स ओनली, तो वो मेन फ्रेम्स वगैरह पे यूज़ नहीं होते. द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी शेयरिंग. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और इसको आपने एज अ टास्क भी किया है, तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वाई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव बीन developed. Multiprocessing operating systems have been developed because they were used to obtain very high speed to process large amount of data. It executes a single program using many processors at the same time to improve processing speed. The only aim was to achieve high processing speed. That's why multiprocessing operating systems were developed. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था एज अ क्लास असाइनमेंट. देन वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. ये क्वेश्चन भी हमने अपना क्लास असाइनमेंट के पार्ट के तौर पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वाई प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर. A protection system is required in a computer because it ensures that each resource of a computer is used according to the privileges given to the users by the system administrator. It means कि अगर हमने कोई पासवर्ड लगाया है और मैंने कहा है कि प्रिंटर जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करे, तो इट मीन्स जो प्रिंटर है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे ही यूज़ हो सकेगा. तो दैट्स वाई प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर यूज्ड कि कोई भी रिसोर्सेज का जो है वो मिसयूज़ ना हो. देन व्हाट इज़ अ थ्रेड. इसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस. And the last question is differentiate between multi-programming and multi-threading by giving one example of each. ये भी हम क्वेश्चन ऑलरेडी अपना क्लास असाइनमेंट के तौर पे कर चुके हैं. ये इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम शेयरिंग सम MCQs फॉर योर प्रैक्टिस. ये MCQs आपके अदर देन एक्सरसाइज हैं, फ्रॉम द चैप्टर हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है. वीडियो को आप पॉज करें और इसके आंसर्स आप लिख लें. ये 19 MCQs हैं और इनको आप जब सॉल्व कर चुकेंगे तो यू कैन सेंड मी योर आंसर्स. आई विल सेंड यू दी आंसर की सो दैट यू कैन टैली फॉर योर क्लास वर्क. सो दिस वॉज द चैप्टर नंबर 1 विच इज़ बीइंग रिवाइज टुडे. सो प्लीज़ इसको आप रिवाइज़ करें. इस वीक में वी विल बी हैविंग एन असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.